Okay, student, there was a problem in the previous video, so I am making again this video for you. कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे हम. कंप्यूटर मेमोरी is a memory that means that temporarily hold the data while processing. जब डेटा प्रोसेस हो रहा था तो उसको टेम्परेरी होल्ड करना पड़ता है. वो क्या होती है, हमारी मेमोरी होती है. When we talk about the memory of computer system, we usually talk about the main memory. हम उसकी मेन मेमोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नीडेड, but it is used for storage the data for future use, and it is permanently. But memory, primary memory is not permanently, it is temporary, holds the data. So units of memory. A computer system use binary use numbers to store the process the data. The binary digits 0 and 1, which are the basic units of memory, are called bits. बेसिक जो यूनिट होती है मेमोरी की, वो बाइनरी डिजिट की, वो क्या है, बिट्स हैं. और फर्दर जब इसको हम आगे अगर एक्सटेंड करते हैं तो 4 बिट के जो ग्रुप होता है उसको हम निपल बोलते हैं. एंड देन 8 बिट्स इज द इक्वल्स टू 2 निपल्स. as you can see here, 0 1 triple 0 1 1 0 1, these are the called bytes. The group of 8 bit is called bytes. Like any other standard unit, bytes are grouped together to make bigger chunks of the unit of memory. मेमोरी यूनिट्स को बनाने के लिए ऐसे बाइट्स को ग्रुप किया जाता है. ओके, these are the tables. Kilobytes is equals to 1024 bytes, and 1024 megabyte is equal to 1024 kilobytes. Okay, again 1024 bytes is equals to 1 kilobytes, and 1024 kilobyte is equal to 1 megabytes, and 1024 megabyte is equals to 1 gigabyte, and 1024 gigabyte is equals to 1 terabyte. After that, 1024 terabyte is equals to petabyte, and 1024 petabyte equals to exabyte, and 1024 exabyte equals to 1 zettabyte, and 1024 zettabyte equals to 1 yottabyte, and yottabyte is the biggest memory, that is biggest memory. Okay, it is the very biggest memory, beta, 1 yottabyte. Okay, सबसे बड़ी यूनिट जो होती है हमारी, वो 1 येटाबाइट होती है. द टाइप्स ऑफ मेमोरी. ह्यूमन बीइंग क्या करता है, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ अपने सीखता रहता है और उसको मेमोरी में स्टोर करता रहता है. जब भी वो उसको जरूरत होती है उसको रिकॉल कर लेता है, बट कंप्लीटली रिलाई नहीं किया जा सकता. सो दैट वी द ह्यूमन ट्राई टू राइट द कंसेप्ट in the notebooks, manuals, journals, in a documents, so that can be retrieved from there. Means that will be stored as permanent storage. Now the primary memory. Primary memory is an essential component of a computer system. Program and data are loaded into the memory. Primary memory में load होते हैं processing के लिए. The CPU interact directly with the primary memory to perform read or write operations. It is two types. Why? Random access memory and the read-only memory. Random access memory is a volatile, means as long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it. But as soon as the power supply is switched off, या turned off, the data or contents washed out या wiped out. मतलब डेटा जैसे ही लाइट चली जाएगी तो उसमें डेटा क्या हो जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव हो जाएगा. इट इज यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेली वाइल प्रोसेसिंग. जब कंप्यूटर वर्किंग कर रहा था तो डेटा को टेम्परेली होल्ड करता है. whenever the computer started or a software application launch, जब भी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च होता है या कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले उसको किस चीज़ की जरूरत होती है, वो उस रिक्वायर्ड प्रोग्राम को रैम के अंदर लोड करता है प्रोसेसिंग के लिए. बिकॉज रैम इज यूजुअली रेफर टू एज द मेन मेमोरी, एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, on the other hand, actually में रैम इज द फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस. फास्टर है उससे रैम स्टोरेज डिवाइस से.
अदर हैंड रोम इज नॉन वोलेटाइल। अब वो रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल है, मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द पावर सप्लाई, मीन्स its contents are lost, not lost, even when the power is turned off. It is used as a small but faster permanent storage for the contents which are rarely changed. ऐसे कंटेंट्स को इसमें डाउनलोड किया जाता है जिसको हमें कभी चेंज नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टअप प्रोग्राम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में, उसकी जो वर्किंग है वो एक रोम चिप के अंदर डाल दी जाती है। जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर होता है तो उसी टाइम पे उसको डाला जाता है और बाद में उसको चेंज नहीं किया जाता। उसके बाद आती है एक और मेमोरी जिसका नाम है रैम। रैम इज द फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज कंप्यूटर प्रोसेसर। इतनी फास्ट नहीं है रैम जितना कि कंप्यूटर का प्रोसेसर फास्ट होता है। सो बिकॉज ऑफ द रैम ए सीपीयू मे हैव स्लो डाउन, इसी वजह से हमारा सीपीयू क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज नीडेड, that is called as the primary memory, that is known as the cache memory। उसी को हम कैश बोलते हैं। कैश मेमोरी इज बिटवीन द मेमोरी RAM and CPU। It stores the copies of the data from frequently accessed primary memory locations। प्राइमरी मेमोरी लोकेशन से ये क्या करता है, डेटा को लोकेशंस किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकता है। एंड रिड्यूसिंग द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू द एक्सेस टाइम ऑफ डेटा फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से डेटा आने में जितना समय लगता है सीपीयू के पास, वही उस टाइम को कम कर देता है, क्योंकि कैश मेमोरी जो है दोनों के बीच की मेमोरी है। When the CPU need to some data, it first examine the cache memory। जब भी सीपीयू को कोई डेटा की जरूरत होती है तो वो कहाँ में किस चीज को एग्जामिन करेगा, वो एग्जामिन करेगा कैश मेमोरी को, एंड देन आफ्टर दैट वो रैम में जाएगा। ठीक है, अगर उसको कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो सेकेंडरी सॉरी वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ढूंढेगा, नहीं कि रैम के अंदर जाकर के ढूंढेगा। ओके, after that the secondary memory। secondary memory you can see that pen drive, hard disk, cd, dvd and memory cards, tap drives, solid state drives। okay, primary memory has limited storage capacity as you know। primary memory बहुत ही कम होती है, that is even expensive and small in the size। either it is volatile, और ये वॉलेटाइल भी होती है, पर जबकि रोम जो है वॉलेटाइल रहती है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो सिर्फ रीड कर सकती है, एक बार डेटा डाल दिया दैट यू कैन रीड। thus a computer system need auxiliary memory or secondary memory or to the permanently store the data for instructions or future use। फ्यूचर यूज के लिए डेटा को क्या करती है, इंस्ट्रक्शंस को या डेटा को परमानेंटली होल्ड करके रखती है। The secondary memory is non-volatile and has a larger storage capacity than primary memory। Primary memory से कहीं ज़्यादा उसकी capacity होती है। It is slower and cheaper than the main memory, but it cannot be accessed directly by the CPU। CPU इसको directly access नहीं कर सकता। Secondary memory को कोई भी CPU directly access नहीं कर सकता है। ठीक है, content of the secondary memory need to brought into the main memory for CPU to access। Examples of the secondary memory devices include hard disk drive, CD drive, memory drive। ये सारे क्या होते हैं, हमारे secondary storage होते हैं। इस टेबल में आपको जो भी दिखाई दे रहा है बेटा, ये सारा क्या है, secondary storage है। However, these days there are secondary storage device like SSD which support very fast data transfer। एक secondary storage device जो आया है SSD, वो हार्ड डिस्क से कहीं ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, एक नई इवेंट है ये। Also, data transfer between computers have become easier and simpler due to the availability of small sized and portable flash or pen drives। Okay, अब बात आती है डेटा ट्रांसफर कैसे होता है बिटवीन द सीपीयू। डेटा नीड टू बी ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से डेटा को सीपीयू के पास जाना पड़ता है, सीपीयू से डेटा हमारा किस में आता है, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी से जाता है वो सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब कहने का ये है कि हार्ड डिस्क से डेटा रैम में जाता है प्रोसेस होने के लिए सीपीयू के पास, और सीपीयू के पास प्रोसेस होकर के वापस रैम में आता है, और रैम से वापस वो कहाँ चला जाता है, हार्ड डिस्क में चला जाता है। डेटा ट्रांसफर बिटवीन थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। जो डेटा जो ट्रांसफर होता है वो फिजिकल वायर के द्वारा होता है,
उसको हम बस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस इज यूज टू डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है इसको। पोर्ट होते हैं बहुत सारे जिसे डेटा बाहर निकलता है, इंटर एंटर करता है हार्ड डिस्क और बिटवीन हार्ड डिस्क एंड मेन मेमोरी। बस ऑफ थ्री टाइप, तीन प्रकार की बसेज होती है हमारे पास। डेटा बस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स, एड्रेस बस टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी, and the CPU, the address of the memory location that CPU want to read or write is specified in the address bus, वो एड्रेस बस में स्पेसिफाई किया जाता है। एंड कंट्रोल बस, एक तीसरी होती है कंट्रोल बस। देखिए जैसे जैसे भी इसमें देखा रखा है, ये पूरी की पूरी जो बस देखा रखी है आपको, ये एक सिस्टम बस है। सिस्टम बस इज कंप्राइज ऑफ थ्री बसेज, डेटा बस, एड्रेस बस एज वेल एज कंट्रोल बस। Control bus to communicate control signal between the different components of a computer. All these three buses collectively make the system bus as shown in the figure 1.8. As the CPU interacts directly with the main memory, क्योंकि कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है। एनी डेटा इंटर फ्रॉम इनपुट डिवाइस or the data to be accessed from hard disk need to be placed in the main memory। जो भी डेटा प्रोसेस करना है वो कहीं भी पड़ा हो, चाहे हार्ड डिस्क में पड़ा हो, तो उसको किस पे आना पड़ता है, मेन मेमोरी में आना पड़ता है फर्दर फर्दर प्रोसेसिंग। डेटा इज देन ट्रांसफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग द बस। डेटा ट्रांसफर होता है सीपीयू और मेन मेमोरी में बस को यूज करके। द सीपीयू प्लेसेस ऑन द एड्रेस बस, सीपीयू किस पे प्लेस किया जाता है, एड्रेस बस के ऊपर। The address bus of the main memory location from which it want to read data or to write the data. While executing the data, sorry, CPU places on the address bus the address of the main memory locations from which it want to read data or write the data। ये जिस भी लोकेशन से डेटा को रीड या राइट करना चाहता है, ये उस एड्रेस बस के ऊपर ही होता है, इसलिए सीपीयू को किस पे प्लेस कर दिया जाता है, एड्रेस बस के ऊपर। जब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट हो रही होती है तो सीपीयू स्पेसिफाइड करता है कि रीड है या राइट है, वो एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है बसेस के थ्रू, जिसको कंट्रोल बस कहते हैं। एज द सीपीयू मे रिक्वायर टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी और राइट डेटा इनटू मेन मेमोरी, डाटा बस इज बाइडायरेक्शनल, क्योंकि डेटा को रीड भी करना है मेन मेमोरी से और राइट भी करना है, तो उसको एक डेटा बस की जो होती है, सॉरी इसको बस की जो होती है, एक डाटा बस जो होती है वो बाइडायरेक्शनल होती है। ठीक है, वो रीड भी करती है और राइट भी करती है। बट द कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस आर द यूनिडायरेक्शनल, कंट्रोल बस और जो एड्रेस बस है वो यूनिडायरेक्शनल है। टू राइट डेटा इनटू मेमोरी द सीपीयू प्लेसेस द डेटा ऑन द डेटा बस। अगर हमें राइट करना है डेटा को मेमोरी में, तो सीपीयू प्लेसेस द डेटा, सीपीयू डेटा को किस पे प्लेस करता है, डेटा बस पे, विच इन देन विच इज देन रिटर्न टू स्पेसिफिक एड्रेस, फिर उसको स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर राइट करना पड़ता है, which is then written to the specific address provided through the address बस। मतलब विच इज देन रिटर्न, उसको रिटर्न किया जाता है जिसको, तो स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर, जो प्रोवाइड कौन करता है, एड्रेस बस प्रोवाइड करती है। एड्रेस बस का काम एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन द सीपीयू स्पेसिफाइज द एड्रेस, सीपीयू क्या करता है, स्पेसिफाई करता है एड्रेस को, एंड द डेटा इज प्लेस्ड ऑन द डेटा बस, और डेटा को किस पे प्लेस कर दिया जाता है, डेटा बस के ऊपर, बाय डेडिकेटेड हार्डवेयर। डेडिकेटेड हार्डवेयर का मतलब है कि जो इनपुट आई है वो डेटा की कहाँ से आई है, माउस से आई है, कीबोर्ड से आई है, या माइक से आई है, या टच स्क्रीन से आई है, किस से आई है, वो सारा कौन बताएगा, उसको डेडिकेटेड हार्डवेयर बताएगा। कॉल्ड डेडिकेटेड हार्डवेयर कॉल्ड मेमोरी कंट्रोलर, डेडिकेटेड हार्डवेयर को हम मेमोरी कंट्रोलर भी बोलते हैं। द मेमोरी कंट्रोलर मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा, जो मेमोरी कंट्रोलर होता है वो डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, और जो डेटा एंटर कर रहा है उसके फ्लो को भी कंट्रोल करेगा, और जो डेटा मेमोरी से बाहर जा रहा है उसको भी ये कंट्रोल करेगा। ओके, नेक्स्ट टाइम हम कल पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी एक प्रकार का सीपीयू ही होता है, इसी को माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं। आगे बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे। सो
ये आपका लेक्चर था आज का, जो आवाज़ की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं कर पाया उसको अपलोड ठीक से, तो मैं दोबारा इसको बना करके अपलोड कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स।